Hare Krishna. Prabhu. I'm not good at Hindi. I will ask in English. You said about Paradharma. Na? What happens if we follow Paradharma? What happens if we follow Paradharma? हिंदी समझते हैं ना? थोड़ा थोड़ा? हाँ. ठीक है. इनका प्रश्न ये है कि परधर्म पालन करने से क्या होता है. परधर्म मतलब जो वर्ण आश्रम में हमारा धर्म नहीं किसी और का धर्म है वो पालन करने से क्या होता है. What happens when you follow paradharma? I will give you one example, Mataji. In India, previously we used to have Vaidya. Now, what is the meaning of Vaidya? Doctor is not Vaidya. Physician is a loose translation of the term Vaidya. So Vaidya is somebody who is born in a family of Vaidyas. He has the mental capacity for becoming a Vaidya. He has the acumen of becoming a Vaidya. He has the necessary holistic attitude of becoming a Vaidya. Now, when somebody who is not a Vaidya becomes a Vaidya, he is following Paradharma. Now, when such a person becomes a Vaidya, takes the position of a Vaidya, for what purpose will he perform the duty of a Vaidya? Because that is not his nature and that is not his eligibility. And then from Vaidya he will suddenly turn into a profiteering doctor. आप समझ रहे? I don't know how many, सबको समझ, जिसको नहीं समझ आ रहा मैं हिंदी में बताता हूँ. परधर्म करने का क्या परिणाम होता है. तो मैं एक उदाहरण के साथ बता रहा हूँ. वैद्य क्या होता है. वैद्य का उन्होंने अर्थ बताया डॉक्टर. तो वैद्य वो होता है जो जिसके कुल में वैद्य हुए हों और जिसके मन में वो वैद्य बनने की सात्विक भावना हो, वो वैद्य होता है. अब जब ऐसा व्यक्ति नहीं है, कोई दूसरा व्यक्ति वैद्य बन बैठता है, तो उसके मन में वो वैद्य बनने की भावना, सात्विक भावना नहीं है और उसमें वो योग्यता नहीं है. फिर वो वैद्य क्यों बनेगा? तो किसी और प्रयोजन को संतुष्ट करने के लिए वैद्य बनेगा. क्योंकि वैद्यकीय शास्त्रों में वैद्य बनने का जो प्रयोजन है, उस प्रयोजन में वो फिट नहीं बैठ रहा. आप समझ रहे? जो चरक संहिता है उसमें बताया गया है, चरक वैद्य थे, सुश्रुत वैद्य थे, वाग्भट वैद्य थे, ये वैद्य थे. अब जो व्यक्ति वैद्य नहीं है, वो जब वैद्य बनेगा तब उसमें वैद्य के सारे लक्षण नहीं रहेंगे. ऐसा व्यक्ति जब वैद्य बनेगा तो एक काम के लिए, मुख्य रूप से एक काम के लिए वैद्य बनेगा. किस काम के लिए वैद्य बनेगा? पैसा. Few days ago, there was a very unfortunate video that somebody forwarded in a family group, which I happened to see, that in order to empty a hospital, there was a particular doctor or assistant doctor was beating the patient so that the patient who is about to die will die quickly. You can search it. कुछ दिन पहले के ही था. ठीक है. So patient was beaten in the hospital so that they will die quickly. जिसको हमने रक्षक माना है वो भक्षक बन गया ना हमारा. आप समझ रहे? हाँ हाँ. So, Even women are doing men's work. yeah. So some women, they are even good at doing that. Some women, they are in different positions like management, some are in teaching, and they are really good. They perform better than men.
But if the same women, if they are giving to manage the home, they are hiring maids for home, and they are managing, really perform well at their work. So do you think they are doing paradharma? Acha. Mataji, what is the foundation of civilization? Office or home? Home only. Yeah. The foundation of civilization is not office. Yeah. The foundation of civilization is a home. In Bhagavad Gita, Krishna says, Shreyan Swadharmo Viguna. If your own Swadharma you are not able to do properly, still doing your Swadharma is good. In Kali Yuga, now I will not go into specific example of women or men or somebody. I gave the example of Vaidya because I hope there are not many Vaidyas here. But I don't want to give the example of women because there are many women here. Right. So, if a particular person deviates from their Swadharma, the impact is not seen immediately. The impact is seen after some time in some generations. Today we want to raise a child. To raise the child, both parents are having a headache. Isn't it true? एक बच्चा बड़ा करने में दुख है. Why is there so much headache for raising one child? Because let's be very honest, it takes a village to raise a child. जब हम बड़े हुए, हम गांव में बड़े हुए. I spent a lot of my time in village. My parents never had responsibility sharing. Okay, Monday you take care of him, Tuesday I'll take care. Wednesday you take care of him, Thursday I'll take care of him. I said this was not there. I got taken care of, by the village. That is how I was raised. I got taken care of. Now, suddenly because we found so many disadvantages of that system, we broke out of that system. So now we are with another set of disadvantages. So the foundation of civilization is family. And the family works well when everybody does their swadharma. Even if improperly. Even if improperly. Many of us might have had parents who might have had some flaws. My father, how do we remember our parents? Some people may say, my father was good, he used to smoke cigarettes, but he was good. My father was good, he used to drink alcohol, but he was good. My father was good, he had some gambling habit, but he was good. He was there for me. Is this better or my father was not there for me? What is better? My mother was there, she wouldn't cook always what I wanted, but she was always there for me. Is this better or my mother was never there for me? What is better? This is very important. So, a civilization is based on home. Unfortunately, the impression being given is that a civilization can be based simply out of an office. So that is not how a civilization is made. The foundational cornerstone of a civilization is home. And the home is where the father is present and the mother is present. Both are present. Both are present. If the father is absent, you cannot imagine the amount of psychological impact that it has on the child. It gives such a negative impression to the child. I have met people
in whose lives the father was absent, and throughout their life they grew up with the feeling, why did my father leave me? Did he hate me? And I have also seen people who grew up without a mother, and they also grow up with the feeling, why did my mother leave me? Was I so worthy of hatred? There must be something wrong in me that my father or mother did not take care of me. When a child grows up with this inferiority, it impacts their overall psychological development. And therefore, in previous generations, parents used to compromise for the sake of bringing up the child. Today we don't like to hear that word, but previous generations, all our ancestors compromised a lot of things for us to be here. Now, we don't want to do that, maybe because we are very intelligent. Our ancestors were very foolish. They compromised. And we are very intelligent. We won't compromise. Or maybe we are most foolish. But that only time will tell. So I think that is the answer to your query. हरे कृष्णा बाबू, थैंक यू। आपका बहुत धन्यवाद जो आपने पंचम जो पुरुषार्थ है उसको व्यापक तरीके से बताया। अभी समझ में तो आ गया करना क्या है, लेकिन दिक्कत ऐसी है कि कर नहीं सकते, क्योंकि स्वभाव आदत ऐसी है कि खुद के सुख के लिए ही अब तक जी रहे थे और जी रहे हैं। मतलब बचपन में किसी ने बोला कि देवा मला सुखी कर, वहाँ से अभी तक वही चल रहा है। तो अभी भगवान के सुख के लिए कुछ करना, हाँ अच्छी बात है, लेकिन बहुत दिक्कत और असंभव ऐसी बात लगती है। बहुत सही आपने बोला, मैं आपसे परिपूर्ण रूप से सहमत हूँ। आपने जो बताया वो प्रश्न नहीं बताया, आपने प्रश्न नहीं बताया, आपने समस्या बताई है। क्या बताया आपने? मैंने एक बात बोला था, जब हमारे सामने समस्या आए तो हमें खुश हो जाना चाहिए। व्यासदेव जी भी समस्या आने के बाद ही खुश हुए, है कि नहीं? हाँ, व्यासदेव जी, उनका सुख समस्या के बाद आया। अब हमारे सामने वापस क्या आ गई है? हमें सुखी हो जाना चाहिए, क्योंकि जब हम इस समस्या के उस पार पहुंचेंगे तो हम और परिपक्व और मैच्योर हो गए रहेंगे। हमें कुछ ऐसा पता चलेगा जो हमें अब तक नहीं पता था। व्यासदेव जी को भी कुछ ऐसा पता चला नारद मुनि से जो उनके हृदय में वो ढूंढ रहे थे। तो समस्या दूर होने का जो सुख है वो बहुत बड़ा सुख होता है। बहुत कठिन है, आपने कहा, क्योंकि हमारी स्वाभाविक जो अभिलाषा है वो स्व सुख की अभिलाषा है। तो फिर हम ऐसे पायदान पे कैसे पहुंचे जब हम भगवान का सुख चाहते हो? इसीलिए हम खुद के प्रयास से वो नहीं कर पाएंगे। उसका उत्तर ये है, उसके लिए हमें कोई एक ऐसा व्यक्ति ढूंढना होगा जो अपने जीवन में उस पायदान तक पहुंच गया हो। आप समझ रहे? कोई एक ऐसा व्यक्ति ढूंढना होगा जो उस पायदान तक पहुंच गया हो। हमारे खुद के प्रयास से वो नहीं होने वाला। अच्छा, जब हम उसको देखेंगे और उसके अहेतुकी प्रेम के कारण जब हमारे हृदय पे उसकी छाप पड़ेगी, तब जाके हमें समझ आएगा कि इस संसार से परे जो वस्तु है वो क्या है, क्योंकि वो वस्तु इस संसार की नहीं है। और हम जीवात्मा जो है, हम अनादिकाल से इसी संसार में फंसे हुए हैं। तो संसार से परे जो वस्तु है हमें देखने की योग्यता हम में नहीं है। तो जो अहेतुकी प्रेम है, जो उस संसार की वस्तु है, वो उस संसार के किसी व्यक्ति के अंदर ही पाई जाती है। आप समझ रहे? और वैसा जो कोई प्रेमी भक्त होता है, जब कोई गुरु रूप में हमारे सामने प्रकट होता है,
तब जाके कल्याण का मार्ग खुलता है। ये बात है। तो आपके जिज्ञासा का उत्तर ये है, इसीलिए किसी ऐसे गुरु के शरणागत होना होगा जो पहले से ही प्रेम के विद्या में सिद्ध हस्त हो, तब जाके होगा वो, अन्यथा नहीं। ठीक है। ऐसे ही कह दीजिए, हमें सुनाई दे देगा। प्रभु जैसा उन्होंने बोला, मेरा प्रश्न भी सिमिलर लाइन पे ही है। हम मटेरियलिस्टिक बॉडी में है, अशुद्धि के साथ ही जन्म लिया। शुद्धि का सोचना मतलब बहुत ही आइडियलिस्टिक लगता है। जैसे उन्होंने बोला ये अशुद्धि वाली बॉडी में शुद्धि करें, और प्रभु जी पुराने जितने भी जो भगवान के जो भक्त बने हैं, इट स्टार्टेड विद अ पर्पस। जैसे ध्रुव महाराज का पर्पस था, आई वांट टू हैव द बिगेस्ट किंगडम इन माय लाइफ, बिगर देन माय फादर, एंड ही स्टार्टेड एंड ही गॉट द गॉड, एंड द सेम थिंग हैपन विद द सो मेनी भक्ट्स। तो प्रभु मेरा प्रश्न ये है कि हर चीज पर्पस से ही चालू हुई है, तो क्या ग्रेजुअल इंटीग्रेशन होगा, कैसे होगा? क्योंकि ये सोचते ही ऐसा लगता है कि वो नॉन स्टार्टर बोलते हैं, तो ऐसा लगता है कि प्रभु लगता है कि जा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं लगता है कि ये सोच पाएंगे शुद्धि वाला बात। तो बहुत अच्छा प्रश्न है कि ध्रुव जैसे बहुत सारे भक्तों ने जब अपना भक्ति आरंभ किया तो कोई हेतु लेके आरंभ किया। ध्रुव का हेतु ये था कि मुझे अपने दादा के जो दादा है उनसे भी ऊंचा स्थान चाहिए मुझे। तो जब ये हेतु लेके उन्होंने भक्ति आरंभ किया, तो हम अहेतु की होके कैसे भक्ति आरंभ कर सकते हैं? जब ध्रुव महाराज को भगवान की प्राप्ति हुई, जिस समय उनको भगवान दिखे, उसके बाद उनको इस विषय में बहुत पश्चाताप हुआ कि मैं आपसे कुछ मांगने आया था। तो हरि भक्ति सुधोदय में उसका एक श्लोक आता है, काचम विचिन्वन अपि रत्न दिव्यम स्वामिन कृतार्थोस्मि वरम न याचे। काचम विचिन्वन अपि रत्न दिव्य, कांच ढूंढता हुआ मैं बहुत बड़ा रत्न पा गया। स्वामिन कृतार्थोस्मि, भगवान में कृतार्थ हो गया, वरम न याचे, और कुछ नहीं चाहिए। उसके बाद भी भगवान ने ध्रुव महाराज को बोला, अब आप इतने हजारों वर्ष तक ध्रुव लोक में रहिएगा। अब बताइए वो वरदान है कि कष्ट है? हाँ, वरदान तो है, पर जिस व्यक्ति के हृदय से सारी इच्छा निकल गई उसके लिए वरदान है कि कष्ट है? कष्ट है ना। उसके बाद भी ध्रुव महाराज जी को कष्ट हुआ। एक तो ये राजपाट संभालने का कष्ट हुआ। उसके बाद जब उनका भाई उत्तम मरा, गंधर्वों के हाथ से, यक्षों के हाथ से उत्तम मृत्यु को प्राप्त हुआ, तब ध्रुव महाराज को भारी क्लेश हुआ। उन्होंने यक्षों की पूरी सेना लगभग समाप्त कर दी। तब जाके मनु महाराज को आके बोलना पड़ा, भाई रुको। हाँ, बाकी देवताओं को आके बोलना पड़ा, बस हो गया, ठीक है। तो वास्तव में ये जो सारे प्रयोजन है, गजेंद्र जो है दुख के मारे भक्ति किया था उसने। ये सब प्रयोजन ठीक है, पर जब व्यक्ति भक्ति को वास्तव में प्राप्त होता है, शुद्ध भक्ति को प्राप्त होता है, तो वो अहेतुकी भाव से प्राप्त होना चाहिए। अन्यथा उसमें अभी भी व्यापार की भावना है, और व्यापार की भावना से किया हुआ प्रेम उत्तमा भक्ति नहीं है, उत्तम भक्ति नहीं है। तो आप बोल रहे हम तो इस शरीर में, हम तो अशुद्ध है, तो शुद्धि को प्राप्त कैसे करेंगे? तो आपको शरीर के द्वारा शरीर की शुद्धि नहीं करनी है, आपको भक्ति के द्वारा शरीर का शुद्धि करना है। शरीर का शुद्धि, भौतिक वस्तु की शुद्धि आध्यात्मिक पदार्थ से करनी है, भौतिक पदार्थ से नहीं कर रहे। आप समझ रहे? तो आध्यात्मिक वस्तु से भौतिक वस्तु की शुद्धि करने की बात हम कह रहे हैं। भक्ति ये इस संसार की नहीं है, भक्ति आध्यात्मिक संसार की है।
जब भक्ति देवी स्वयं आपके शरीर में प्रकट होगी, आपको अलग से प्रयास नहीं करना पड़ेगा, आप स्वयं शुद्ध हो जाओगे। आपके प्रयास की बात ही नहीं है, आप समझे, आपके प्रयास की बात। ध्रुव महाराज प्रयास कर रहे, 6 महीना प्रयास किया उन्होंने, उसमें उतना शुद्धि नहीं हुआ जितना भगवान के गले यहाँ एक शंख स्पर्श कर देने से जितना शुद्धि हुआ। सही बात है कि नहीं? भगवान ने आके, ध्रुव महाराज कुछ बोल नहीं पा रहे थे, भगवान ने आके शंख छुआ इधर कपोल पे, तब जाके ध्रुव महाराज का पूरा शुद्धि हो गया। तो शुद्धि किससे होता है? तपस्या करने से शुद्धि होता है कि भगवान की भक्ति से शुद्धि होता है? हाँ, भक्ति करने से, भगवान की भक्ति करने से शुद्धि होती है। हमारे मन में यह भ्रांति है कि तपस्या करने से शुद्धि होती है। तपस्या करने से शुद्धि नहीं होती। भगवान की भक्ति जो तपस्या से अलग है, जो ज्ञान वैराग्य से अलग है, भगवान का प्रेम करने से शुद्धि होते हैं, अन्यथा शुद्धि अर्थात क्या? अहैतुकी हो जाना ही तो शुद्धि है। आप समझ रहे हैं? शुद्धि अर्थात क्या होता है? शरीर को घिसना शुद्धि होता है क्या? वो कोल्हू का बैल होता है, देखा आपने कोल्हू का बैल गांव में? वो जितना अपने शरीर को घिसता है उतना तो कोई नहीं घिस सकता। तो कोल्हू का बैल तो इसी जन्म में भगवत धाम चला जाना चाहिए। शरीर को घिसने से शुद्धि नहीं होता है। वो मन थोड़ा जब शुद्ध होता है ना भक्ति के प्रभाव से, तब वो शुद्धि, उस शुद्धि को शुद्धि कहते हैं। अन्य शुद्धि वास्तविकता में शुद्धि नहीं है। शुद्धि होता है मन का परिवर्तन, हेतु का परिवर्तन, और वो भक्ति के द्वारा होता है। वो आपके प्रश्न को उत्तर है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।